وقت گزرتا جا رہا ہے اور میرا اس گھر سے تعلق ختم ہوتا جا رہا ہے۔ وہ گھر جس میں میرا بچپن گزرا آج کیوں اجنبی سا محسوس ہو رہا ہے، یا میرا وہم ہے؟ بابا مجھے ہمیشہ منحوس کہتے تھے۔ پتہ نہیں میں نے اس گھر میں پیدا ہو کر کون سا گناہ کیا تھا۔ بھائی بھی اب مجھ سے نفرت کرنے لگا تھا۔ ایک ماں تھی جو مجھے پیار کرتی تھی۔ جنت نے یہ سب سوچتے سوچتے ایک سرد آہ بھری اور اپنے اللہ سے سوال کرنے لگی، اے اللہ، کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ کیا میں تیری بندی نہیں ہوں؟ اللہ تو سب کی سنتا ہے، نیکوکاروں کی بھی، گناہ گاروں کی بھی، صدا سن میری بھی مولا۔ میں نے کبھی کسی کا دل تو نہیں دکھایا، پھر میرا دل کیوں دکھایا جاتا ہے؟ وہ رو رو کر سسکیاں لے لے کر خدا سے مخاطب تھی، سوال پہ سوال کر رہی تھی اور بے شمار سوچوں میں گم۔ پھر پہلی سوچ پہ پہنچ گئی، اللہ، اگر کبھی اس گھر میں میرے لیے جگہ ختم ہو گئی تو کیا ہوگا؟ کہاں جاؤں گی؟ میں تو یہ سوچتے ہوئے بھی کانپ رہی ہوں، اور یہ سب سہ کیسے پاؤں گی؟ اللہ، اگر ایسا وقت آئے تو مجھے حوصلہ دینا، مجھے آسرا دینا۔ یہ کہتے کہتے تکیے پہ سر رکھ دیا، اور اب جنت کی آنکھوں میں آنسوؤں کا سیلاب تھا۔ پورا کمرہ اس کی ہچکیوں سے گونج رہا تھا۔ اتنے میں ایک آواز آئی، جنت بیٹا دیکھو تو دروازے پہ کون آیا ہے؟ جنت نے جلدی سے آنسو صاف کرتے ہوئے ہچکچاتی ہوئی آواز میں جواب دیا، جی اماں، آتی ہوں۔ جنت کمرے سے باہر آئی تو اماں کو کام میں مصروف دیکھا۔ ابا ہمیشہ کی طرح چارپائی پہ سوئے پڑے تھے۔ جنت نے خاموشی سے جا کر دروازہ کھول دیا۔ کون تھا جس کی طرف دیکھ کے جنت غصے میں آ گئی، مگر کچھ بول نہ پائی۔ اتنے میں آواز آئی، جنت بیٹا کون ہے؟ اماں شکورہ خالہ ہے۔ جنت نے ہلکی سی آواز میں کہا، شکورہ خالہ، آئیے اندر۔ جنت شکورہ خالہ کو اپنی اماں کے پاس بٹھا کے کچن کی طرف چل پڑی۔ جنت بیٹا، اپنی خالہ کے لیے چائے بنا کے لاؤ، ساتھ بسکٹ بھی، شکورہ خالہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ جنت منہ میں بڑبڑاتی ہوئی کچن میں پہنچی اور چائے بنانے کے ساتھ ساتھ پھر اپنی سوچوں میں گم ہو گئی۔ اتنے میں آواز آئی، جنت بیٹا چائے لے آؤ۔ جنت نے چونکتے ہوئے جواب دیا، جی اماں۔ جنت نے چائے لا کر شکورہ خالہ کو دے دی۔ شکورہ خالہ جنت کو کھاگ جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ آسمان پہ جوڑے اللہ اور زمین پہ شکورہ خالہ ملاتی تھی، مگر ابھی تک جنت کے معاملے میں ناکام رہی۔ جنت چائے دینے کے بعد اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کمرے میں جاتے ہی اسے بے شمار سوچوں نے گھیر لیا۔ وہ شیشے کے آگے بیٹھ گئی اور خود کو غور سے دیکھنے لگی اور پھر سے باتیں کرنے لگی، اے اللہ، اگر مجھے بنایا تھا تو خوبصورت بھی بناتا۔ سب مجھے نہیں، مجھ میں خوبصورتی ڈھونڈتے ہیں، اور جب ان کو خوبصورتی نہیں ملتی تو چپ کر کے چلے جاتے ہیں۔ اللہ، کیا میرے لیے کوئی نہیں بنا جو خوبصورتی سے نہیں مجھ سے شادی کرے؟ مگر یہ بھی کہاں ممکن ہے، لوگ تو خوبصورتی کے پجاری ہیں۔ جنت جو اللہ سے ہی ہر سوال کا جواب کرتی رہتی تھی، جنت بیٹا، جنت کی اماں نے آواز دی اور کمرے میں آ گئی۔ جی اماں، بیٹا شکورہ آج بہت اچھے گھر کا رشتہ لے کر آئی ہے۔ لڑکے کا اپنا بزنس ہے، مگر عمر کچھ زیادہ ہے، بس 45 سال کا ہے، 2 بیویاں پہلے ہیں، تمہیں الگ سے گھر لے کر دے گا۔ یہ دیکھو تصویر۔ بیٹی خدا کے لیے مان جا، اس بار بھی تو نے انکار کر دیا تو تیرا باپ تجھے اور مجھے جان سے مار دے گا۔ اگر یہ رشتہ ہو جائے تو ہمارے سر سے بھی بوجھ اتر جائے۔ تصویر دیکھ کے جنت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اماں، یہ تو ابا کی عمر کا ہے، اور آپ، کچھ کہتے کہتے جنت رک گئی اور شادی سے ایک بار پھر انکار کر دیا۔ جنت کی اماں کمرے سے چلی گئی اور جنت دوبارہ اپنے کمرے میں لگے شیشے کے آگے بیٹھ گئی۔ بھائی اور بھابھی بھی آنے والے ہوں گے، پھر بھابھی کی جلی کٹی باتیں سننی پڑیں گی۔ اے اللہ کرم کر، سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے مایوسی بھرے انداز میں جنت نے کہا۔ جنت کا ایک بھائی اور بھابھی بھی ہیں۔ بھائی جاب کرتا اور بھابھی زیادہ تر اپنے میکے میں رہتی، کیونکہ سسرال والوں سے کم ہی بنتی تھی ان کی۔ زیادہ جنت سے بھابھی کو مسئلہ ہوتا۔ اگر جنت کی بھابھی جنت سے بہنوں والا سلوک کرتی تو جنت آج کبھی بھی احساس کمتری کا شکار نہ ہوتی، اور جنت کا بھائی جو صرف اپنی بیوی کی ہی سنتا ہے، ایسے انسان سے کیا کہا جا سکتا ہے؟ جنت جو گہری سوچوں میں گم اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھے جا رہی تھی، اتنے میں اس کے بھائی بھابھی بھی آ چکے تھے۔ جنت کو کوئی خبر نہیں تھی، جنت کدھر ہے اماں؟ جنت کو ایک ہلکی سی آواز اپنے بھائی کی سنائی دی،
और वो फौरन उठी और सहमे हुए अंदाज में अपने कमरे से बाहर आई। कैसी हो जन्नत? भाई और भाभी ने पूछा। मैं ठीक, हल्की सी खौफ से भरी हुई आवाज में जन्नत ने कहा। ऐसे ही कुछ अरसा गुजर गया था। जन्नत भाभी भाई की बातें सुनती मगर चुप रहती। उनको जल्दी थी कि कब जन्नत की शादी हो, कब हमारे सर से आजाब टले। ये अल्फाज उसकी भाभी के थे। अफसोस, एक औरत दूसरी औरत को आजाब कह रही है। भाभी अपनी नंद को आजाब कह रही है, जबकि वो खुद भी किसी की बेटी और बहन है। बहू और बेटे के आगे जन्नत के अम्मा अब्बा भी नहीं बोल सकते थे। अब्बा तो वैसे भी जन्नत को मनहूस समझते थे। जन्नत और उसकी अम्मा घर का काम करते और फिर भी 2 वक्त की रोटी के लिए बातें सुनते। जन्नत अपने कमरे में बैठी फिर सोचों में गुम थी। जन्नत की अम्मा उसके पास आई, बेटी को गले लगा लिया और रोने लगी। जन्नत की आंखों से भी आंसू टपकने लगे। अम्मा, ये जिंदगी ऐसी क्यों है? मुझे रोज ये तोड़ती है। मैं रोज अपने दामन की किरचियां समेटती हूँ, ये फिर तोड़ती है। दोनों माँ बेटी रो रही थी कि अचानक घर का दरवाजा खुला और जन्नत का बाप, जो नशे में था, धाड़ते हुए अंदर दाखिल हुआ और जन्नत को गालियां देने लगा। इस कमीनी ने फिर इनकार कर दिया है। कहाँ है जन्नत? मैं इसकी जान ले लूंगा। इतनी देर में शकूरा माई भी घर में दाखिल हुई और कहा कि समझाओ अपनी बेटी को, शादी के लिए हाँ कर दे। अगर तुम्हारी बेटी ना मानी तो तुम्हें जो लड़के वालों ने 50,000 दिए हैं वो वापस करना होंगे। जन्नत की माँ ने सुना तो उसने जल्दी से कमरे की कुंडी लगा दी। वो जानती थी कि अगर जन्नत का बाप कमरे में आ गया तो उसकी तो पिटाई होगी, साथ में वो जन्नत को भी नहीं छोड़ेगा। शकूरा माई जब जाने लगी तो जन्नत के बाप अलियास ने कहा कि मुझे 2 दिन का टाइम दो, मैं अपनी बेटी को समझाऊंगा। तुम लड़के वालों से कहो कि वो तैयारी करें। वो तो चली गई, मगर जन्नत का बाप बाहर सहन में खड़ा चिल्लाता रहा, मैं आज इसका गला दबा दूंगा। ये मनहूस है, दरवाज़ा खोलो, मैं इसकी जान ले लूंगा आज। मैं जुबान दे चुका हूँ। वो काफ़ी देर चिल्लाता रहा, मगर जन्नत की माँ ने दरवाज़ा ना खोला। आखिर वो ये कहकर बाहर चला गया कि इसे समझाओ, ये ना मानी तो मैं इस मनहूस को जिंदा दफन कर दूंगा। जन्नत की माँ सब समझ चुकी थी कि अलियास नशे के लिए पैसे न होने की वजह से बेटी का सौदा कर चुका है। पहले तो वो चुप था कि जन्नत इस रिश्ते के लिए मान जाएगी, मगर जब जन्नत ने इनकार किया तो वो अब जबरदस्ती पर उतर आया था। कुछ देर खामोशी होने के बाद जब जन्नत की माँ ने कमरे का दरवाज़ा खोला तो बाहर कोई नहीं था। जन्नत का भाई काम पर था और बहू अपने कमरे में। जन्नत रोते हुए अपनी माँ से कहने लगी, माँ, मैं मर तो जाऊंगी मगर इस बूढ़े से शादी नहीं करूंगी। जन्नत की माँ ने एक बार फिर उसकी मिन्नत की कि बेटी मान जाओ, वरना तुम्हारा बाप तुम्हें और मुझे मार देगा। मगर जन्नत ना मानी और माँ के कदमों में बैठ गई। जन्नत की माँ कुछ देर चुप रही और फिर अचानक जन्नत को कहने लगी कि आओ मेरे साथ, एक ऐसी जगह चलते हैं जो सबका सहारा है। जन्नत हैरत भरे लहजे में अपनी माँ के मुंह की तरफ देखकर कहती, मगर अम्मा किधर? आओ तुम और अपना जो कुछ जरूरी सामान है ले लो। जन्नत रोते हुए बोली, अम्मा, अगर इस घर में जो कभी मेरा था सिर्फ तब तक जब मैं छोटी थी, अब इस घर में मेरे लिए जगह नहीं है तो चीज़ें क्या मायने रखती हैं? नहीं अम्मा, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मेरा इस घर में कुछ नहीं है। जन्नत की अम्मा जन्नत को लेकर घर से निकली और एक ऑटो लिया। ऑटो वाले को एड्रेस बताया कि उधर ले जाओ। जन्नत एड्रेस सुनकर कांप गई, मगर कुछ बोलने की भी सकत ना रही। कुछ ही देर में ऑटो एक बहुत बड़े गेट के पास आकर रुक गया। जन्नत की अम्मा ने ऑटो वाले को कुछ देर रुकने को बोला और ऑटो से नीचे उतर गई। जन्नत ये देखकर हैरान हुई क्योंकि गेट के ऊपर बहुत बड़ा सा लिखा था, ईदी होम। जन्नत हल्की सी मुस्कुराई और अपनी अम्मा को कहा कि आप अब जाएं, मैं समझ गई, आप अपना ख्याल रखना, मेरी फिक्र ना करना, मैं अपने घर पहुंच गई हूँ। जन्नत की माँ ने रोते हुए कहा, बेटी, मेरे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है। और वो उसी वक्त ऑटो में दोबारा बैठ गई और उसे चलने को कहा। जन्नत ऑटो को दूर तक देखती रही और देखते ही देखते ऑटो नजरों से ओझल हो गया। जन्नत गेट से अंदर दाखिल हो गई। जैसे ही जन्नत गेट से अंदर दाखिल हुई, सामने एक बाबा जी व्हील चेयर पे बैठे थे। एक लड़का उनके पाँव में बैठा था। वो उन बाबा जी के हाथ चूम रहा था। जन्नत दिल में सवाल करने लगी कि कौन है ये बुजुर्ग जो ये लड़का इतनी अकीदत एहतराम से हाथ चूम रहा है इनके। सोचते सोचते आगे बढ़ी,
बहुत लोग हैं यहाँ, बच्चे बूढ़े जवान सब। पता नहीं इनकी क्या मजबूरी रही होगी, शायद इनके लिए भी इनके घरों में जगह कम पड़ गई होगी या किसी के घर ही ना होंगे। ऐ दो जहां के मालिक, कैसी दुनिया है। तेरे ही बंदे एक दूसरे को खा जाने को हैं। जन्नत खुद से तो कभी अल्लाह से सवाल जवाब करे जा रही थी और फिर उसकी नज़र एक झूले पे पड़ी जो छोटे से बच्चों को झुलाने के लिए होता है। जन्नत उसके पास गई, ऊपर लिखा हुआ पढ़ने लगी, बच्चों को कत्ल ना करें, इस झूले में डालें। इसके बारे में तो मैंने सुना हुआ था, आज देख लिया, जन्नत ने कहा और वहीं पे बैठ गई और सोचने लगी कि एक मैं ही नहीं, इधर तो बहुत से लोग हैं जिनका कोई सहारा नहीं, या फिर घर वालों ने तंग आकर इधर भेज दिया। एक बार फिर उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे और फिर सोचों में गुम खुदा से बातें करने लगी कि या अल्लाह, जो घर मेरे अम्मा अब्बा कहते थे तेरा है, आज उस घर में इतनी जगह नहीं थी कि मैं उधर रह सकूं। अम्मा का भी क्या कसूर था, वो भी मजबूर थीं। वो यही सोच रही थी कि एक शख्स आया और सामने ऑफिस में बैठे एक बुजुर्ग की तरफ इशारा किया कि वो आपको बुला रहे हैं। जन्नत वहां गई तो वो बुजुर्ग जो इस इदारे को चला रहे थे, जन्नत से आने की वजह पूछी। जन्नत की सारी बात सुनने के बाद उन्होंने कुछ कागजात पर जन्नत के साइन करवाए और उसे एक कमरा रहने के लिए दे दिया। वहाँ लेडीज स्टाफ भी मौजूद था। अब जन्नत को 3 टाइम खाना और ज़रूरत की हर चीज़ उस स्टाफ के ज़रिए मिल जाती। वो अकेली बैठकर अक्सर रोती और सोचती, पता नहीं अब्बा ने अम्मा के साथ क्या किया होगा। कुछ अरसा ऐसे ही गुजर गया। जन्नत उधर सबके साथ एक फैमिली की तरह रहने लगी। एक दिन फिर उसने उसी लड़के को देखा जो फिर उसी बुजुर्ग के पास बैठा था, और जन्नत जो कुछ दूर ही बैठी थी और उस लड़के के जाने का इंतज़ार करने लगी। जैसे ही वो लड़का गया, फौरन उस बुजुर्ग के पास आई और एहतराम के साथ उनका हाल पूछा। बाबा जी कैसे हैं आप? ठीक हूँ बेटा, बाबा ने जवाब दिया। बाबा जी एक सवाल पूछूं? जी बेटा पूछो। बाबा जी आप इधर क्यों आए? क्या आपका अपना घर नहीं है? और वो लड़का कौन है जो रोज आपके पास आता है? जन्नत ने सवाल पे सवाल कर दिए। बाबा जन्नत के सवालों पे मुस्कुरा दिए और बोले, बेटा पहले तुम अपना नाम बताओ। जी मेरा नाम जन्नत है। बेटा बहुत प्यारा नाम है आपका, और आप इस ईदी होम में कैसे आई हो? बाबा जी मैं ही नहीं, देखें और कितनी बहनें बच्चे बूढ़े, एक मैं भी उनमें शामिल हो गई। लेकिन बेटा मेरा फिर भी वही सवाल है। जन्नत नम आंखों से बताने लगी, बाबा जी मैं अपने घर में सबकी बहुत लाडली थी। घर तब तक मेरा था जब तक मैं छोटी थी, मगर अब बड़ी होने के साथ रिश्ते भी खो से गए हैं। हम 2 बहन भाई हैं। भाई की शादी हो चुकी है। अब्बा नशा करते हैं, सारा दिन नशाओं में बैठकर जुआ खेलते हैं, और अम्मा सारा दिन कोई ना कोई काम करती रहती हैं। भाभी बस अम्मा पे और मुझ पे हुक्म चलाती हैं। भाई उनको कुछ कहने की बजाय हमें ही डांट देते हैं। वो भाई जो मैं जब छोटी थी मेरे मुंह में रोटी के निवाले डालता था, अब कभी पूछा नहीं था। नौकरों की तरह सलूक होता था घर में, बल्कि नौकरों को भी अच्छा खाना मिलता होगा। अब अम्मा पता नहीं कैसे होंगी, क्या सलूक होता होगा उनके साथ, और अब्बा ने तो बहुत मारा होगा उन्हें। वो ये बात कहकर रोने लगी, फिर रोते हुए बोली, अम्मा मेरी वजह से छुप छुप कर रोती रहती। अब्बा हर वक्त मुझे मनहूस कहता था, अम्मा को बात बात पर मारता था। जब मैं जवान हुई तो अब्बा मेरा सौदा करना चाहता था। हमें इस बात का इल्म नहीं था। वो एक रिश्ता करवाने वाली के साथ मिलकर किसी अमीर बूढ़े से पैसे लेकर मुझे बेचना चाहता था। उसे नशा और जुआ खेलने के लिए पैसे चाहिए थे बस। उसने मुझे एक बूढ़े शख्स से 50,000 लेकर बेच दिया और कहा कि मैं उससे शादी कर लूं, मगर मैंने रिश्ते से इनकार कर दिया। अब्बा उस दिन बहुत गुस्से में थे और कहा कि आज रात में इस मनहूस को मार दूंगा। अम्मा डर के मारे मुझे इधर छोड़ गईं। पता नहीं अम्मा किस हाल में होंगी। वो भाई जो बचपन में मेरी आंख में आंसू देख लेता तो खुद रोने लगता था, आज उसको आंसू दिखाई ही नहीं देते। जन्नत ये बताकर रोने लगी। बाबा जी की आंखें भी नम हो गईं और हल्की सी मुस्कान के साथ बोले, जन्नत बेटा अल्लाह हर चीज़ पे कादिर है, गम ना करो, वो दुआएं सुनता है। वो जो करता है इंसान की उसमें कोई ना कोई बेहतरी होती है। तुम इधर आई, इसमें भी कोई बेहतरी होगी, और अल्लाह तो हमारी शारिक से भी ज़्यादा करीब है। बाबा जी आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, आपका कोई नहीं अपना? जन्नत ने फिर पूछा।
बाबा मुस्कुराए और बोले, अपने तो हैं, मगर उनके पास इस बूढ़े बाबा के लिए जगह नहीं थी। मतलब मेरा बेटा मुझे यहाँ छोड़ गया था, और जिसका तुमने पूछा वो मेरा पोता है। जब मैं यहाँ आया तब वो छोटा था, मगर अब जवान हो गया है। मुझसे बहुत मोहब्बत करता है और मुझे 2 दिन तक ले जाएगा इधर से। उसकी बहुत अच्छी नौकरी लगी है, घर भी मिला है, रोज आता है मेरे पास मुझे मनाने कि मैं उसके साथ जाऊं। अब हाँ कर दी है, शायद यही अल्लाह की मर्जी है। और अब वो शादी करना चाहता है, वो भी किसी बेसहारा लड़की से। बहुत ही अच्छा बच्चा है। बेटा जन्नत, इंसान की जिंदगी बुरी नहीं होती, उसके इर्द गिर्द जो लोग होते हैं वो बुरे होते हैं। एक बात कहूँ, मानोगी? जी बाबा बोले, मेरे पोते से शादी करोगी? जन्नत ये सुन के बाबा की तरफ हैरानी से देखने लगी और बोली, मैं कैसे शादी करूं? जन्नत हिचकिचाते हुए अंदाज में बोली, हाँ बेटा तुम बताओ। मैं इधर से चला जाऊंगा, मगर तुम्हें भी अपनी बेटी बनाकर साथ ले जाना चाहता हूँ। नहीं बाबा, आपका पोता तो बहुत खूबसूरत है और अमीर भी। मैं अक्सर अम्मा से कहती थी, मुझे अमीर ज़ादों से नफरत है। पता है क्यों? क्योंकि उनको हर चीज़ दौलत में तौलने की आदत होती है। बाबा जी जन्नत की बात पे हंस पड़े और जन्नत सवालिया नज़रों से बाबा की तरफ देख रही थी। जन्नत बेटा, मेरा पोता जितना बाहर से खूबसूरत है, उससे कहीं ज़्यादा अंदर से खूबसूरत है। तुम बताओ, मेरी बेटी बनोगी? जन्नत ने उस लड़के को बहुत दफ़ा देखा था और जन्नत को वो अच्छा भी लगता था। ठीक है बाबा, मगर एक शर्त है, आप ज़बरदस्ती नहीं करोगे अपने पोते के साथ। उनका जवाब अगर हाँ हुआ तो ही मैं भी मानूंगी। जन्नत ने जवाब दिया, जन्नत बेटा ठीक है। कुछ ही देर बाद बाबा का पोता, जिसका नाम हमाद था, बाबा के पास आया। जन्नत छोटे बच्चों को खाना खिलाने में मसरूफ थी। बाबा ने कहा, हमाद बेटा, आज एक बात करने लगा हूँ, मानोगे? दादाजी हुक्म करें। हमाद ने अपने दादा के पांव दबाते हुए बोला, वो लड़की देख रहे हो जो बच्चों को खाना खिला रही है? बाबा ने जन्नत की तरफ इशारा करते हुए कहा, दादाजी वो कौन है? हमाद जन्नत की तरफ देखते हुए बोला। बाबा ने जन्नत के बारे में सब बता दिया। हमाद वाकई ही जितना खूबसूरत था, उससे कहीं ज़्यादा अंदर से खूबसूरत था। उसने जन्नत की दास्तान सुनी तो दिल में इरादा किया कि बस अब जन्नत से ही शादी करेगा। हमाद ने शादी के लिए हाँ कर दी। हमाद और जन्नत की शादी ईदी होम में हुई और हमाद जन्नत और बाबा को लेकर घर चला गया। अब जन्नत की ज़िंदगी में सिर्फ खुशियाँ थीं। उसे अम्मा की बहुत याद आती थी। जन्नत के इसरार पर हमाद उसे उसके घर ले गया, मगर वहाँ माँ मौजूद नहीं थी। जन्नत की भाभी ने बताया कि तुम्हारे जाने के बाद जब तुम्हारी माँ को तुम्हारे बाप ने बहुत मारा और कहा कि जन्नत कहाँ है, मगर तुम्हारी माँ ने कुछ ना बताया। फिर वो रोज़ उसे मारते थे। फिर एक दिन कुछ लोग तुम्हारे अब्बू की लाश उठाकर ले आए और बताया कि नशा ज़्यादा करने की वजह से उनकी मौत हो गई है और वो गली के एक कोने में गिरे पड़े थे। उनकी तदफीन के बाद तुम्हारी माँ बहुत बीमार रहने लगी थी। इस वक्त वो एक सरकारी अस्पताल में एडमिट हैं। जन्नत और हमाद जल्दी से अस्पताल पहुंचे और जन्नत की माँ वहाँ एक बेड पर मौजूद थी। बेटी को देखते ही वो खिल उठी और हमाद के बारे में पूछा, ये कौन है? जन्नत ने जब सब बताया तो वो खुशी से उठ बैठी। शायद बेटी का गम ही उनकी बीमारी का सबब था। कुछ दिन बाद हमाद और जन्नत उन्हें अपने घर ले आए और अब वो अपनी बेटी और दामाद के साथ रहती हैं। अब जन्नत की ज़िंदगी में सिर्फ खुशियाँ थीं। जन्नत अब भी सोचती रहती है कि मेरे साथ मौजज़ा हुआ है अल्लाह ताला की तरफ से। अपने माँ बाप, बहन भाइयों की इज्जत करें। बहनों को बोझ मत समझें, माँ बाप को बोझ मत समझें। बहनें बोझ नहीं होती। खुदा ना खास्ता अगर आप में से किसी के बहन तंग आकर यतीम खाने या ईदी होम का रुख कर लेती है तो ये बात याद रखें, जन्नत की तरह सबके साथ मौजज़ा नहीं होगा। हमाद की तरह कोई शादी के लिए नहीं आएगा। मौजज़े किस्मत से होते हैं जो जन्नत के साथ हुआ था।